Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Simple Concepts. In this video, we are going to know about some economic and financial affairs, and also we'll be learning about some general awareness topics which are helpful in your RBI Grade B, SEBI Grade A and UPSC exam. So we are getting started with the articles of November month. उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट रूही मैम इज़ वन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी. There she handles all comprehensive courses for SEBI Grade A and RBI Grade B examination. तो अगर आप उनके कोर्सेज़ लेना चाहते हैं वो आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलेंगे. ओके, द कोर्सेज़ आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस. तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा अनअकैडमी पे, एंड फॉर दैट you can use the code SC10. With this code you would be able to get 10% off. Okay, so enroll for the Unacademy Plus course and prepare for your bank exams. So these are the courses which are taken by her, like the RBI Grade B Phase 2, SEBI Grade A Paper 2, Banking Financial Economic Awareness, Current Affairs for all bank exams, Insurance Awareness for all insurance exam. Okay, so get the subscription on Unacademy and use the code SC10 to get 10% discount. There you can get these courses which are presented by Ruhi ma'am. Okay, so I would like to suggest you all that take the subscription on Unacademy before 31st December. This is basically a price hike alert. आपको मैं बताना चाहती हूँ कि 31st दिसंबर के बाद जो प्राइसेस हैं सब्सक्रिप्शन के वो बढ़ा दिए जाएंगे बाय अनअकैडमी. सो डू नॉट मिस द चांस टू टेक द सब्सक्रिप्शन एट लोअर प्राइसेस. ओके, सो गेट द सब्सक्रिप्शन. So this Unacademy is one-stop solution to crack your bank exams. Okay, you will be provided with quizzes, mock tests, courses and batches. Okay, so whatever course you are preparing for, you would be able to get the study material accordingly, like the videos. Okay, your doubt sessions would be there, then the study material in the form of PDF as well. Okay, and test series तो आपकी चलाई जाती है. So all those things you are able to get with just one subscription on Unacademy. So do not miss out on this subscription. Okay, so the top educators are also available, right? So the price hike would be on 31st of December, so I would like to suggest that take the subscription before that. Now this is the channel for the study material that would be provided for your course सिंपल कॉन्सेप्ट्स बाय रूही मैम. इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको अपडेट्स दिए जाएंगे जो इनकमिंग कोर्सेज हैं उनके. ओके, एंड ऑल्सो यू वुड बी प्रोवाइडेड विथ द स्टडी मटेरियल लाइक द PDF, वीडियो लिंक्स जो है आपके मॉक टेस्ट हैं, सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर अवेलेबल करा दी जाएंगी. ओके, सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन दिस चैनल एज वेल. नाउ वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद आवर आर्टिकल्स फॉर नवंबर मंथ. So the very first article is that Gujarat government plans to build world's largest toy museum. आपका जो गुजरात गवर्नमेंट है, it has planned to build the largest toy museum in the world. Okay, it would be set up in Gandhinagar's Gift City. Gift City के बारे में हमने बात इससे पहले भी कर चुके हैं. ठीक है, तो वो क्या है आप सबको याद होना चाहिए बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. आपका जो गिफ्ट सिटी है ये आपकी फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है. ओके, तो आप यहाँ पे आइडिया देख रहे हैं कि कहाँ से डिराइव किया गया है. ये आपके डिज्नीलैंड टाइप का बनाना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप. जो आपकी गिफ्ट सिटी है वो ऑलरेडी एक स्मार्ट सिटी है एंड ऑपरेशनल. इंडिया में फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी जो है वो आपकी गिफ्ट सिटी है. ओके, सो वहाँ पे अब वो लार्जेस्ट टॉय म्यूज़ियम कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं वर्ल्ड का. ओके, सो आप इसका रिजेम्बलेंस समझ सकते हैं कि कहाँ से लिया गया है, एंड दिस इज़ द वेरी गुड मूव. तो नोडल एजेंसी जो है वो है आपकी चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी इन गांधीनगर. फोकस इज़ ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क मोमेंट्स थ्रू टॉयज़ एंड टेबल्स ऑन सेक्शंस डेडिकेटेड टू इसरोज गगनयान प्रोजेक्ट. ठीक है, आपका जो गगनयान प्रोजेक्ट है
उसके जो सेक्शंस हैं वो भी बनाए जाएंगे, एंड आपके जो इंडियन हिस्ट्री है उसको डिपिक्ट किया जाएगा टॉयज़ के थ्रू. सो the landmark moments would also be displayed in the museum. EVM machines and first war of independence in 1857. तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शो किया जाएगा आपके म्यूज़ियम में. ठीक है. अंडर द म्यूजियम replicas of electronically operated, battery operated and solar based rockets, prithvi missile, agni missile and Sterilise will also be displayed with the help of DRDO. तो आपका जो DRDO है, ठीक है, तो DRDO ने बोला है दैट द इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल्स जो हैं, जैसे कि पृथ्वी हो गया, आपका अग्नि हो गया, और जो सैटेलाइट्स हैं, इन सब के रेप्लिकास को भी डिस्प्ले किया जाएगा in the museum. Okay, so this is a very good move. Now Indian Railways engages RailTel to implement an HMIS across its health facilities. So recently Indian Railways has engaged RailTel to implement hospital management information system across its health facilities. तो ऑब्जेक्टिव जो है इसका, जो एम है वो है कि आपका जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, ओके, तो उसका जो आर्किटेक्चर है उसको सीमलेस बनाने के लिए, उसके द्वारा जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनको सीमलेस बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए जो HMIS है इसको लाया गया है. सो इंडिया साइंस 4 MOUs विद मालदीव्स. तो ये भी एक आपकी छोटी सी न्यूज़ है कि जो मालदीव्स है, ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल क्या है आप लोगों को पता है, आई होप यू ऑल रिमेंबर, इट इज़ माले, है ना, माले है इसकी कैपिटल. तो अब 4 MOU साइन किए गए हैं. तो 2 जो MOU है उसमें से दे हैव बीन साइन फॉर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. ओके, सो आपके हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं 2 MOU. जो तीसरा है वो है कोऑपरेशन इन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स. ओके, ये आपका थर्ड हो गया. अब आपका जो फोर्थ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ another $100 million grant which is part of India's $500 million package for the Greater Malay Connectivity Project. इसमें क्या किया जाएगा आपके 2 सिटीज़ के बीच में, ठीक है. जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये मालदीव्स है और ये आपका इंडिया है. तो इसमें क्या किया जाएगा, ओह आई एम सो सॉरी, जो आपके मालदीव्स हैं, ठीक है, तो मालदीव्स में आपके ब्रिजेस बनाए जाएंगे, मालदीव्स में आपके ब्रिजेस बनाए जाएंगे, और वो कौन बना रहा है, आपका इंडिया बना रहा है. सो दैट इज़ द पॉइंट. वो है आपका ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपका ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाया गया है, एंड दैट इज़ टू बी फंडेड बाय इंडिया. नाउ इंडियाज़ मोस्ट जेनरस लिस्ट. सो ये जो लिस्ट है इसमें आपका क्या किया जाता है, जिन भी लोगों ने 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का डोनेशन दिया है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, तो उनको इंडियाज़ मोस्ट जेनरस लिस्ट में शामिल किया जाता है. तो उसमें टॉप 10 में जो हैं वो हैं आपके अजीम प्रेमजी, शिव नडार, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, अनिल अग्रवाल, अजय पिरामल, नंदन नीलेकानी, हिंदुजा ब्रदर्स, गौतम अदानी एंड राहुल बजाज. तो ये आपके कुछ टॉप 10 लोग हैं जिनको इंडियाज़ मोस्ट जेनरस लिस्ट में शामिल किया है, क्योंकि दे हैव डोनेटेड 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड. ठीक है, तो उनको ये देखिए आप सारे मिलियनायर्स ही हैं. ओके, ऑल द बिग फेसेस ऑफ द कंट्री. नाउ UAE टू एक्सटेंड गोल्डन वीज़ाज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. अब आपका जो UAE है, ठीक है, UAE की कैपिटल बताइए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ UAE? इट इज़ आबू धाबी. आबू धाबी, right? So UAE in 2019 had started granting 5 and 10-year renewable visas to certain foreign investors, entrepreneurs, चीफ एग्जीक्यूटिव, साइंटिस्ट एंड आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अब जो आपका गोल्डन वीज़ा एलिजिबिलिटी है तो उसमें आपके
10 ईयर के लिए रेजिडेंसी प्रोवाइड की जाती है, तो उसको गोल्डन वीज़ा सिस्टम बोलते हैं। तो यूएई ने 2019 में जो स्टार्ट किया था 5 और 10 ईयर के लिए, ठीक है, रिन्यूएबल वीज़ाज ग्रांट करने का जो प्रोसेस था, उसमें उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, आपके साइंटिस्ट और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को काउंट किया था। नाउ 6 इन पाकिस्तान मार्क फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। तो आपका करतारपुर कॉरिडोर क्या है? इट हैज़ लिंक्ड देरा बाबा, ये आपका एक पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, तो ये आपका पिलग्रिमेज है। इट हैज़ लिंक्ड देरा बाबा साहिब इन गुरदासपुर इन इंडिया एंड गुरुद्वारा करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया में जो आपका देरा बाबा साहिब जो 6 का पिलग्रिमेज है, उसको, जो कि गुरदासपुर में सिचुएटेड है, उसको, और पाकिस्तान के गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को कनेक्ट करने वाला जो कॉरिडोर है, उसको ही हम करतारपुर कॉरिडोर बोलते हैं। अब ये जो कॉरिडोर है, रिसेंटली 6 इन पाकिस्तान हैज़ हेल्ड रिचुअल्स एट गुरुद्वारा दरबार साहिब टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। तो ये आपका इसका फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया है। नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी रिलीजेस स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी। तो आपके जो महात्मा गांधी जी हैं, उनके लिए एक स्पेशल एंथोलॉजी रिलीज़ किया है, एंड इट हैज़ बीन टाइटल्ड एज माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट गांधी। द बुक हैज़ बीन ब्रॉट अप बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ BP कोइराला, इंडिया नेपाल फाउंडेशन, टू चेरिश द वैल्यूज़ ऑफ महात्माज यूनिवर्सल टीचिंग्स विद नेपाली फ्रेंड्स। ओके, तो आपके नेपाल में इसको रिलीज़ किया गया है। नाउ फास्ट रेडियो बर्स्ट स्पॉटेड बाय नासा फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिल्की वे, ठीक है। तो आपको मिल्की वे पता है ना कि व्हाट इज़ मिल्की वे? मिल्की वे इज़ नथिंग बट इट इज़ द गैलेक्सी, ओके, इट इज़ द गैलेक्सी। सो रिसेंटली नासा हैज़ स्पॉटेड फास्ट रेडियो बर्स्ट FRB जो है फॉर द फर्स्ट टाइम इन मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये जो गैलेक्सी है, यहाँ पे आपके FRB, ये क्या होते हैं? फास्ट रेडियो बर्स्ट। द एक्सरे पोर्शन ऑफ द FRB वॉज डिटेक्टेड बाय सेवरल सैटेलाइट्स। तो आपके ये जो FRB है, दीज आर नथिंग बट द रेज, ओके, दीज आर काइंड ऑफ रेज जिनको कि सैटेलाइट डिटेक्ट कर पाता है। तो उनके जो एक्सरे पोर्शन है, उसको FRB के एक्सरे पोर्शन को, जो नासा के द्वारा सैटेलाइट्स रिलीज़ करी गई हैं ऊपर, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया है। द रेडियो कंपोनेंट वाज डिस्कवर्ड बाय कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट, जो कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट, चाइम जिसको हम बोलते हैं, तो उसी के द्वारा ये वेव्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। फास्ट रेडियो बर्स्ट आर ब्राइट बर्स्ट ऑफ रेडियो वेव्स, वही मैंने आपको बताया है, दीज आर द काइंड ऑफ वेव्स whose duration lie in the millisecond scale because of which it is difficult to detect them and determine their position in the sky। तो इसके लिए आपको जो है, ठीक है, हाई इंटेंसिटी वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे डिटेक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनका जो ड्यूरेशन है, ओके, वो आपके मिली सेकेंड स्केल पे लाई करते हैं। सो दे सर्वाइव ओनली फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड, जिनको डिटेक्ट कर पाना नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स, जो नॉर्मल टेलीस्कोप्स, जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, उनसे नॉर्मली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। दैट्स वाई स्पेशल काइंड ऑफ these machines are required. So it was first discovered in 2007. UAE relaxes Islamic laws, allows कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल। तो आपके जो UAE हैं, उन्होंने बोला है कि जो अनमैरिड कपल्स हैं, अब वो एक साथ रह सकते हैं, ओके। तो UAE में इससे पहले एक साथ रहना अनमैरिड कपल का वॉज इलीगल। इट हैज़ नाउ अलाउड कोहैबिटेशन ऑफ अनमैरिड कपल्स। इट हैज़ डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ लॉज प्रोटेक्टिंग ओनर क्राइम्स, ठीक है। तो आपके जो कुछ और भी लॉज हैं, इस्लामिक लॉज, जिनको अब बदल दिया गया है, जैसे कि जो ओनर क्राइम्स हैं, उसके केस में काफ़ी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी, ओके।
एंड ऑल्सो जो लॉज प्रोटेक्ट किया करते थे ओनर क्राइम को, तो उन लोगों को अब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी एंड दोज लॉज हैव बीन अबॉलिश्ड. इट हैज़ scraped penalties for alcohol consumption. Okay, now alcohol consumption has also put out from the ambit of illegal activity. सेल्स एंड पोजेशन फॉर दोज 21 एंड ओवर, तो जो 21 या उससे ज़्यादा साल के हैं, तो अब वहाँ पे पेनल्टीज़ जो लगाई जाती थी अल्कोहल कंजप्शन के अल्कोहल कंजप्शन पर, उसके सेल पर और पोजेशन पर, तो वो हटा दी गई हैं. नाउ वर्जिन हाइपरलूप होस्ट फर्स्ट ह्यूमन राइड ऑन न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम. तो ये वर्जिन हाइपरलूप है. इट हैज़ कंप्लीटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पैसेंजर राइड ऑन अ सुपर हाई स्पीड लेविटेटिंग पॉड सिस्टम. चलिए पहले मैं आपको समझाती हूँ ये टेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी. इसमें क्या किया जाता है, ये मान लीजिए आपका एक ये एक टनल टाइप की तैयार की गई, जिसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर. अब यहाँ पे कोई एक ऐसा कंटेनर है. ओके, ऐसा कंटेनर है जिसमें कि आप पर्सन्स को बिठा सकते हैं. ठीक है, अब इनको जब आप बिठा के यहाँ से फोर्स लगाया जाएगा. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ इसको भेजा जाएगा एंड ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ट्रैवल करते हुए जैसा है, ओके, वैसा का वैसा ट्रैवल करते हुए इसके एंड पे पहुंच जाएगा, टनल के एंड पे, जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है. सो दिस इज़ द टेक्नोलॉजी. जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है वो यही है. तो इसका फर्स्ट ट्रायल जो है वो कंप्लीट हो गया. फर्स्ट ह्यूमन राइड जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है. इट हैज़ रीच्ड एट द स्पीड ऑफ अप टू 172 किलोमीटर पर आवर एट द कंपनीज डेव लूप टेस्ट साइट इन लास वेगस, USA. Virgin Hyperloop Power Electronics Specialist Tanay Manjrekar would be riding the next Hyperloop. He belongs to Pune. तो आपके जो एक इंडियन हैं, he is also going to ride the next Hyperloop. Okay, so asteroid 16 Psyche. Now what is this? According to a NASA study published in the Planetary Science Journal, has found an asteroid 16 Psyche could be made entirely of metal. जो आपका एस्ट्रॉइड है जिसका नाम 16 साइक रखा गया है, इट इज़ अज्यूम्ड दैट इट कुड बी मेड एंटायरली ऑफ मेटल. आपके जो बाकी मटेरियल से बने होते हैं ना एस्ट्रॉइड, दे आर मेनली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स काइंड ऑफ थिंग्स, बट दिस टाइम it is found to be of metal. The asteroid is believed to be worth $, okay, 10,000 quadrillion. okay, आप देख रहे हैं इसकी प्राइस, देख रहे हैं एस्ट्रॉइड की. नाउ इट ऑर्बिट्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. ओके, सो सी क्वेश्चन हियर कुड बी, देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं. आपका पहला तो यही हो गया, आपसे पूछ लेंगे कि 16 साइक क्या है. वो बोल देंगे क्या वैक्सीन है वो, ठीक है, या फिर एम्फीबियन है कोई वो, ओके, या फिर प्लांट है वो कोई, ओके, या कोई नई ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जैसे कि हमने हाइपरलूप के केस में देखा था, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट आपका टेक्नोलॉजी है. तो ये कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं. इसके अलावा अब आपको पता है दैट आंसर इज एस्ट्रॉइड, सो नन ऑफ द अबव. आंसर इज नोटा बिकॉज दिस इज एन एस्ट्रॉइड. दूसरी चीज़ ये आपसे पूछ सकते हैं दैट ये कहाँ पे ऑर्बिट करता है. आपको पता है कि ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में फाइंड किया जा सकता है. ओके, महाबली फ्रॉग में बी केरलाज ऑफिशियल एम्फीबियन. ठीक है, रिसेंटली प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड एंड चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ केरला हैज़ इन्फॉर्म दैट महाबली फ्रॉग जो है आपका, इट हैज़ बीन प्रपोज्ड टू बिकम ऑफिशियल एम्फीबियन ऑफ केरला. तो आपका जो ऑफिशियल एम्फीबियन है
ठीक है। स्टेट ने इसको डिक्लेयर किया है अपना ऑफिशियल एम्फीबियन महाबली फ्रॉग। ये जो महाबली फ्रॉग है इट इज़ अ डार्क पर्पल टू ग्रेइश इन कलर एंड वन ऑफ द रेयरेस्ट फ्रॉग स्पीशीज एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स। तो आपके जो वेस्टर्न घाट्स है ये वहीं पे पाया जाता है। सो जो आपका ठीक है, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हो गए पूरे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपके मुंबई से स्टार्ट होएंगे, महाराष्ट्र से वेस्टर्न घाट चालू होएंगे, ये आपके एंड तक, ठीक है। सो वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। साइंटिफिक नेम इसका ये है, आप देख लीजिए, आई एम नॉट गोना प्रोनाउंस इट, एंड इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज़, ठीक है। फिर भी साइंटिफिक नेम एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लो तो वो दिमाग में रह जाता है। सो नासिका बात्राचूस साहाद्रेंसिस, साहाद्रेंसिस। तो नासिका, ठीक है, आप ऐसे याद रख लीजिए, नासिक के पास कहीं मिलता है, तो नासिक के पास मतलब वेस्टर्न घाट, इसका मतलब महाबली फ्रॉग, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। ऑपरेशन थंडर, ऑपरेशन थंडर 2020 जो है वो क्या है, लेट्स नो अबाउट इट। रिसेंटली इंडिया कस्टम्स हैज़ इंटरसेप्टेड एन 18-ton शिपमेंट ऑफ रेड सैंडलवुड डेस्टिन्ड फॉर द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी जो बात हो रही है वो ट्रैफिकिंग की हो रही है। जो आपका रेड सैंडलवुड है ना, रेड सैंडलवुड जो है, ठीक है, जिसको हम चंदन कहते हैं, चंदन। तो ये जो आपका रेड सैंडलवुड है इसकी तस्करी बहुत होती है, और इसको कहाँ पहुँचाया जा रहा है, आपका UAE पे पहुँचाया जा रहा है, UAE पहुँचाया जा रहा है इसको। तो यही है कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के भी बहुत केसेस आते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिसेंट केस है वो रेड सैंडलवुड का है। इट हैज़ बीन इंटरसेप्टेड अंडर ऑपरेशन थंडर। अब इन सब चीज़ों को पकड़ने के लिए, ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन थंडर लाए गए हैं। नाउ ऑपरेशन थंडर, इट इज़ द फोर्थ इन सीरीज ऑफ थंडर ऑपरेशंस कैरीड आउट एनुअली सिंस 2017। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं उनका मेन फोकस कहाँ पे है, ऑन द स्पीशीज़ प्रोटेक्टेड अंडर द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो आपका जो रेड सैंडलवुड है इट इज़ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फ्लोरा, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑपरेशन थंडर चलाया जा रहा है 2017 से, कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल एंड द वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। Now, Kabartal becomes Bihar's first Ramsar site. See, first of all, you need to understand that what is Ramsar site. ये देखिए, एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनाई गई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स आप समझते हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उनके पास जो एरिया में पानी भरा होता है, प्लस जो हैबिटेट्स बन जाती है बहुत सारे वाटर स्पीशीज़ की, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, तो उनको हम वेटलैंड्स बोलते हैं। सो वो जो एरियाज़ होते हैं वेटलैंड्स के, ठीक है, वो काफ़ी रिच होते हैं इन इन द फॉर्म ऑफ दिस प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़, ठीक है। सो दे आर वेरी रिच इन प्लांट्स एंड स्पीशीज़। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द, अब ये रामसर क्यों नाम रखा गया, बिकॉज इट इज़ नेम्ड आफ्टर द इरानियन सिटी ऑफ रामसर ऑन द कैस्पियन सी वेयर द ट्रीटी वॉज साइंड, ओके सर। जो आपकी ट्रीटी है वो 1971 जब आपका वॉर हुआ था, ठीक है, आपको याद होगा आपके जो बॉर्डर की लड़ाई हुई थी, तो तभी आपके रामसर ट्रीटी साइन करी गई थी कैस्पियन सी पर, जो कि ईरान की एक सिटी है रामसर, वहाँ पे साइन की गई थी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। सो रिसेंटली जो बिहार है उसको उसका फर्स्ट रामसर साइट मिला है, कबरताल। सो कबरताल हैज़ बिकम द फर्स्ट Ramsar site of Bihar. India has 39 Ramsar sites as of now. Okay. So Defense Minister inaugurate model of anti-satellite missile system. So first of all, you all need to understand that what is anti-satellite missile system. See, the point here is that आपकी ये मिसाइल है, इसे अटैक किया गया,
इंडिया के पास है अब एंटी सैटेलाइट, एसेट है इंडिया के पास। ये क्या करेंगे, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है, ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। जैसे कि आपकी न्यूक्लियर हो गई, बायोलॉजिकल हो गई, केमिकल हो गई, किसी भी तरीके का अटैक अगर किया गया है बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रू, तो इंडिया के पास अब एसेट है, ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। तो ये क्या करेंगे, इसको काउंटर अटैक करेंगे। ओके, जो बैलिस्टिक अटैक है उसको काउंटर अटैक करने के लिए एसेट डेवलप किया गया है। तो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम का मॉडल है उसको। ये आपका कहाँ पे, डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स जो न्यू दिल्ली में, वहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। सो डीआरडीओ हैड सक्सेसफुली कंडक्टेड एन एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति इन मार्च 2019। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिलेटेड टू मिशन शक्ति, कि जो मिशन शक्ति है वो क्या है। सो यू नीड टू नो दैट इट इज़ द एसेट मिसाइल टेस्ट, ठीक है। तो उसी को कंडक्ट कराने के लिए मिशन शक्ति चलाया गया है। नाउ Shannon Miller's memoir wins prestigious book award. Recently, Shannon Miller has won the Dayton Literary Peace Prize. He has been awarded for her memoir Know My Name. Alice Hoffman's The World That We Knew has won the fiction award. Christy Leftery's The Beekeeper of Aleppo was named runner-up for fiction. जो Jennifer Eberhardt's biased about how unconscious bias shapes human behavior from the classroom to the courtroom was named runner-up for the non-fiction. Okay, so these are the names of the books which have won prestigious book awards. Okay, now let's move ahead. HDFC Life launches new campaign to support COVID hit Mumbai's Dabbawalas. So this is again a very good move by HDFC. ये इनिशिएट किया है आपके HDFC Life ने in association with Keto India, ठीक है। It has initiated a nationwide crowdfunding campaign. तो उन्होंने crowdfunding campaign लॉन्च किया है एंड इट हैज़ बीन टाइटल्ड एज प्रॉमिस वाला डब्बा। ओके, सो वेरी वेरी यूनिक एंड नाइस नेम. सो इट इज़ बेसिकली फॉर द डब्बा वालास हु हैव बीन हिट बाय द कोविड. ओके, जिनके जो काम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कोविड का, तो उन्हीं के लिए ये जो है प्रोग्राम को लॉन्च किया गया. एम क्या है इसका? टू एम्पावर द डब्बा वाला कम्युनिटी बिफोर दे कैन बाउंस बैक रिज्यूमिंग देयर डिलीवरीज अक्रॉस मुंबई. वही है कि अब जो लॉकडाउन हो गया तो डब्बा वालों का जो काम है वो ख़त्म हो गया है, तो उसी के लिए HDFC लाइफ ने आपके कीटो इंडिया के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को चलाया है. सो HDFC बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और उनकी टैगलाइन जो है वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड. ठीक है, काफ़ी डीप टैगलाइन है हमारे HDFC बैंक की. इट्स गुड. नाउ एशिया पावर इंडेक्स फॉर 2020. रिसेंटली लोवी इंस्टीट्यूट हैज़ रिलीज्ड एशिया पावर इंडेक्स फॉर 2020. तो उसमें आपके 26 नेशंस को और टेरिटरीज़ को कंसीडर किया गया है. इट हैज़ मेजर्ड पावर यूजिंग 128 इंडिकेटर्स. उसमें से आपके जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो है इकोनॉमिक रिलेशंस, ठीक है, आपकी डिफेंस स्पेंडिंग कितनी कर रही है कौन सी कंट्री, इंटरनल स्टेबिलिटी कितनी है कंट्रीज़ के अंदर, इंफॉर्मेशन फ्लोज कैसा है, एंड द प्रोजेक्टेड फ्यूचर रिसोर्सेज. So these are some of the parameters upon which the Asia Power Index has been decided. टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं आपकी वो है USA, चाइना, जापान, इंडिया एंड रशिया. सो दिस इज़ अ प्राउड थिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट वी हैव बीन काउंटेड इन द टॉप 5. US, रशिया एंड मलेशिया पोस्टेड द बिगेस्ट लॉसेज ऑन द इंडेक्स. तो आपके जो US हैं, रशिया है और मलेशिया है, इनको लॉस हुआ है जो इंडेक्स है उसमें. इंडिया हैज़ लॉस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल इन द कोविड पेंडेमिक. India will reach 40% of China's economic output by 2030 compared to the 50% estimate in 2019. ठीक है, तो आपका जो चाइना का इकोनॉमिक आउटपुट है
हमें उस तक 40%, उसका 40% लाने के लिए भी अभी 2030 तक टारगेट करना है. ओके, जस्ट इमेजिन only 40% of China's economic output, and that too we have to wait till 2030. According to United Nations University World Institute for Development Economics Research, around 347 million people in the Asia Pacific region could fall below the US dollar 5.5. तो ये आपके बोल रहे हैं कि जो पेंडेमिक है उसका क्या इफ़ेक्ट होगा एशिया पैसिफिक रीजन्स पर. जैसे कि जो पॉवर्टी लाइन है दैट इज़ US dollar 5.5 अ डे. दिस इज़ द minimum amount of money that the average person should earn. Okay, so if the person does not earn even this much, this means that he would be under the पार्टी लाइन, जो कि आपके ग्लोबल पार्टी लाइन के बिलो चला जाएगा. सो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि आपके 347.4 मिलियन पीपल वुड बी बिलो दिस पार्टी लाइन. नाउ मार्च टू मिलियन इनिशिएटिव क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड. रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट एंड नैस्कॉम क्या है आपका नैस्कॉम होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज. इट इज़ अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज. तो आपके जो BPO कंपनीज हैं, ठीक है, तो उनके साथ जो ट्रेड्स वगैरह किए जाते हैं तो उन्हीं को रेगुलेट करता है आपका नैस्कॉम. Established in 1988, NASSCOM is a non-profit organization. NASSCOM initiated a program called 10,000 Startups in 2013. Okay, so recently it has partnered with Telangana Academy of Skill and Knowledge and Telangana State Council of Higher Education. एम क्या है आपका, टू स्किल 1 मिलियन यूथ्स इन AI, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, उसके लिए 2021 तक आपके 1 मिलियन यूथ्स को स्किल हैं वो आपके प्रोवाइड करेंगे. ओके, दे विल हेल्प इन इम्प्रूविंग देयर स्किल्स इन AI. Under the initiative, Microsoft and NASSCOM will skill 30,000 youths from Telangana in artificial intelligence. It has introduced students to the concepts of artificial intelligence, machine learning and data science. Okay, so these are some of the sectors जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो रही है यूथ की, एंड ऑल्सो विद दीज स्किल्स, जैसे कि आपका AI हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया. ओके, सो जो आपके फिनेंस मिनिस्टर हैं, शी अप्रूव्स MEIS एलोकेशन ऑफ ₹39,000 crore फॉर एक्सपोर्ट्स ड्यूरिंग financial year 20. Now recently finance ministry has approved the allocation of this much crore under the merchandise exports from India scheme. ठीक है, तो आपके जो गुड्स हैं जिनको एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया से, तो उस स्कीम के अंडर, ठीक है, ये जो 39,000 करोड़ रुपीज़ है ये एलोकेट किया गया फिनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ इन्फॉर्म दैट एलोकेशन ऑफ 15,555 crore for exports between April-December has also been approved. The amount allocated has to be used in the following ways. पहला तरीका जो है आपका 39,000 crore है, it is for financial year 1920, rupees 10,555 crore for the period of 1st April 2020 to 31st August. ठीक है, तो 2 फेजेस में ये जो मनी एलोकेट किया गया है इसको यूज़ करना है. Now let's understand what is merchandise exports from India scheme. Introduce जो है इसको किया गया था, it is one of the 2 schemes introduced in foreign trade policy of India 2015 से 20 तक के लिए. मिनिस्ट्री आपकी वही है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. एम है टू मेक इंडियाज प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट्स. नाउ द प्रॉब्लम इज़ दैट हमारा जो इंडिया है, ओके, वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहा है. दैट्स वाई हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं. तो मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ
inefficiencies in our infrastructures. ठीक है, तो इसी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सबसे पहले उसको बिल्ड करना है. ओके, एंड अदर देन दैट द सेकेंड फैक्टर इज दैट द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग products produced in India, giving special emphasis on those which are of India's export interest and have the capability to generate employment and enhance India's competitiveness in the world market. देखिए, अब जो भी चीज़ें यहाँ पे तैयार भी हो रही हैं तो उनको एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो टैक्सेस लिए जाते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा हैं. दूसरी चीज़ ये हो गई. तीसरी चीज़ ये है कि जो इंडिया का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो काफ़ी कम है. सो वी नीड टू enhance the generation of employment and also India's competitiveness in the global market. ठीक है, so that is the MEIS. Ministry of Power mandates all DISCOMs to comply Energy Conservation एक्ट 2001. डिस्कॉम आपकी क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनको हम डिस्कॉम्स बोलते हैं. तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ इशूड नोटिफिकेशन इन सितंबर टू कवर ऑल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अंडर द प्रीव्यू ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड इन कंसल्टेशन विद द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. ठीक है, तो हम यहाँ पे हमें समझने की बात है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका ईसी एक्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो 2001 में आया था, उसको समझना है, वो समझ लेते हैं हम. एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का है, ये गवर्नमेंट को पावर देती है टू स्पेसिफाई नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी टू बी फॉलोड बाय डिफरेंट इंडस्ट्रीज इन द यूज़ ऑफ पावर. देखिए, अब ऐसा है कि गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है, उनके स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करने की पावर आपके गवर्नमेंट के पास होती है. वो कुछ लिमिट सेट कर देते हैं. ओके, तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको उसी लिमिट या कैप हम बोल सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी की, वो लिमिट को अप्लाई करना होता है उनकी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर. द एक्ट एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू एनफोर्स इट्स वेरियस प्रोविजंस. तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी काफ़ी पावर देती है. ओके, इट ऑल्सो एस्टैब्लिशेस द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई क्वालिफिकेशंस एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स फॉर एनर्जी ऑडिटर्स एंड मैनेजर्स हु शैल ऑडिट द यूज़ ऑफ एनर्जी बाय इंडस्ट्रीज. तो वही है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर जो एनर्जी स्पेंड की जा रही है, ठीक है, वो कैसे स्पेंड करनी है, किस एफिशिएंसी के साथ स्पेंड की जा रही है, एंड द क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर्स जो हैं, जो एनर्जी ऑडिटर्स के होते हैं, वो भी आपके गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती है. ओके, सो दैट्स द पॉइंट. तो अभी हुआ क्या है रिसेंटली, all entities having issued distribution license by state या joint electricity regulatory commission under electricity act 2003 have been notified as designated consumers. ठीक है, तो जिनको भी लाइसेंस मिल गया है वो आपके डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स हैं. ओके, तो आपके जो डिस्कॉम्स है दे विल बी गवर्नड अंडर ईसी एक्ट. तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजर है, एनर्जी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेस कैटेगरी वाइज, तो ये जितने भी ऑल दीज एक्टिविटीज़ दे वुड बी कंट्रोल्ड अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ओनली. ओके, द नंबर ऑफ डिस्कॉम्स कवर्ड अंडर ईसी एक्ट विल इंक्रीज फ्रॉम 44 to 102. The quarterly data of DISCOMs will be collected and monitored by the government to suggest measures for increasing the efficiency and reduce the energy loss. तो वही है कि आपका जो एनर्जी यूज़ है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट है वो अपना स्टेप ला रही है. ओके, सो more and more DISCOMs would be under the government now. So DISCOMs whose annual energy losses were equal to or above 1000 MU were only कवर्ड एज डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स. ठीक है जी, पुराना प्रोविजन है, अब ये बदल चुका है ना, तो हमने देख लिया कि क्या चेंजेस आए हैं. नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स.
रिसेंटली जो आपका नेशनल वाटर अवार्ड्स है नंबर 2 दूसरी बार जो है वो दिया गया है फॉर द ईयर 2019। ऑर्गेनाइज ये आपका कराया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके बारे में हमने काफ़ी सुना है। आपका जो JJM है, ठीक है, वो कौन चलाता है आप बताइए। ठीक है, जल जीवन मिशन जो है आपका वो कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन द फोकस क्या है, द फोकस इट फोकसेस ऑन द गुड वर्क एंड एफर्ट्स मेड बाय इंडिविजुअल एंड द ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस इंडिया एंड द गवर्नमेंट्स विजन फॉर द पार्ट टू जल समृद्ध भारत। तो इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने वाटर कंजर्वेशन के फील्ड में बेहतर काम किया होता है। It has also presented an opportunity to discuss on how to further accelerate the Jal Shakti Abhiyan in India. ठीक है, so this also focuses on the acceleration of Jal Shakti Abhiyan. बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है वो आपके तमिलनाडु को दिया गया है एंड देन महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान। ओके, नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है वो आपके 2007 में लॉन्च किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम अलॉन्ग विद द ग्राउंड वाटर ऑगमेंटेशन अवार्ड्स। ठीक है, तो आप जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी अवार्ड दिया जाना था एंड द विनर्स इन द डिफरेंट कैटेगरीज आर गिवन अ साइटेशन ट्रॉफी एंड कैश प्राइज। तो 2007 में आपका ऐसे हुआ करता था जो नेशनल वाटर अवार्ड्स है। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस फील्ड में काम करती है तो उनको एनकरेज करने के लिए, ओके, वाटर रिसोर्सेज कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की फील्ड में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को एनकरेज करने के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए एंड एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट द बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैं उनको जितने ज़्यादा लोग यूज़ कर सकते हैं वो लोगों के अंदर अवेयरनेस वगैरह spread करने के लिए these programs have been launched. It has been presented in 13 different categories like best state, best district, best village. तो हर आप देख रहे हैं एक छोटी से छोटी लेवल पर जाकर ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं so that people could be encouraged to use the best best technique to conserve the water. Okay, जो आपके बेस्ट वाटर यूसेज प्रैक्टिसेस हैं उनको to follow those practices. So that was all about the articles of November month. हमने डिस्कस कर लिया है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं ये जो वीडियो है उसमें, जैसे कि हमने डिस्कॉम्स के बारे में डिस्कस किया, अभी रिसेंटली हमने जल शक्ति के बारे में डिस्कस किया। ओके, सो देयर वर ऑल्सो अदर थिंग्स लाइक जो हमने एनर्जी एक्ट है वो डिस्कस किया, हमने MEIS डिस्कस किया। ओके, देन मार्च 2 मिलियन इनिशिएटिव हमने डिस्कस कर लिया कि इसमें कैसे स्किल को बढ़ावा दिया जा रहा है अमोंग यूथ, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, इन सब के फील्ड में। ठीक है, एंड ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड एशिया पावर इंडेक्स जिसमें कि इंडिया आपके टॉप 5 में आ गया है। कुछ पैरामीटर्स थे जैसे कि आपके इकोनॉमिक रिलेशंस है, इंटरनल स्टेबिलिटी है, डिफेंस स्पेंडिंग है। ओके, HDFC की जो मुहिम है जो डब्बा वाला के लिए उन्होंने चलाई है, प्रॉमिस वाला डब्बा करके, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। ऑल्सो व्हाट एल्स वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया दैट व्हाट इज़ इट एक्चुअली। ठीक है, तो इंडिया को कैसे उससे फ़ायदा होने वाला है वो भी आपको समझ आ ही चुका होगा, और आपको DRDO के बारे में पता ही है ना, इट इज़ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्प्रहेंसिव मैनर में डिस्कस करेंगे सो दैट यू डोंट हैव टू revise for the next time. Okay, if you have already studied, then these are the videos which would help you in revising the things or the events which have already occurred in the month of November. Okay,
So I hope you all are liking the video and also keep learning with us. Thank you so much.